So our next chapter is departmental accounting. So what are the topics to be covered? Objectives, advantages, and difference between different departmental account and branch accounts. Now introduction. See, now what is departmental accounts basically? What are departments? When a business sell different types of goods under one roof, right? So they are divided into different department. Now why these are divided into different department? To know the functioning, efficiency, and profitability of different departments, right? So it is also helpful in really identify all type of wastages. If there is any wastage, any losses of material, so you can easily find out that. So this is basically departments. Now what are the objectives of departmental accounting? It facilitates comparison, right? Departmental account facilitates comparison between different department, right? uh, it also helps in comparative results, right? Comparative result means you can compare different departments, you can compare the results of a department of current year profit to the previous year profit. Then you can easily find out the position of stock, right? So how much stock is left in each department. Next is what are the areas of weakness, whether which portion of the department is, or which department is working effectively, right? Then this information can be used for policy formation, right? Then uh, department accounting helps in information generation for making decisions. Next is advantages of departmental accounting. So the first one is evaluation of performance. The performance of a department can be easily evaluated on the basis of trading result, right? Growth potential of each department. The point number second, the growth potential of a department as compared to other can be evaluated, right? So different department can be compared. Now justification of capital outlay. It helps the management to determine the justification of capital outlay in each department. How much capital is investment and why this much of capital is invested. Then next is judgment of efficiency. So it helps to calculate the stock turnover ratio of each department separately, and thus the efficiency of each department can be revealed, right? So uh, how efficiently a department is working, that can be evaluated. Then planning and control. So it helps availability of separate cost and profit figures for each department facilitates better control, right? It helps in controlling and planning. Next is difference between departmental account and branch accounts. So these are the difference between the department and branch account. Number one is location. So departmental accounts are located within the country, right? But branches are located outside in a foreign country also, right? Establishment of department. All departments of a business remain generally under one roof, but in case of branch of a concern is established at different places in the same town or at a different town, right? So they are geographically scattered. Motive. Departments are made to increase the efficiency of the business, whereas branch is open to increase the sale. Maintenance of accounts. All accounts are maintained at one place and different trading and profit and loss account is prepared accordingly. But in case of branch account, accounts are kept at head office except cash, customer and stock registers are maintained at branch, right? So next point is allocation of common expenses. ठीक है. So जो department are not geographically separated from each other, so problem of allocation of common expenses among different department arises, whereas branches are geographically separated, ठीक है, क्योंकि इनकी लोकेशन अलग है from each other, so the problem of allocation of common expenses among different branches does not arise. तो डिपार्टमेंट में क्या है, इसमें आपको जो कॉमन एक्सपेंसेस है
तो उसमें उसको सेग्रीगेट करने में या उनको एलोकेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे हमने करना है। ब्रांच में ऐसा नहीं है क्योंकि अलग अलग जगहों पे होते हैं ना ये। सो एडजस्टमेंट एंड रिकनसाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, द क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट एंड रिकनसाइलेशन ऑफ अकाउंट डज नॉट अराइज इन डिपार्टमेंटल अकाउंट। यहाँ पर रिकनसिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर पड़ती है क्योंकि आपके जो अकाउंट्स हैं अलग अलग जगहों पे बन रहे हैं। सो प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन करेंसी, अच्छा इसमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसमें डिपार्टमेंटल अकाउंट में, लेकिन ये ब्रांच अकाउंट में पड़ेगी क्योंकि आपके जो ब्रांचेज है वो अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है। ठीक है, जियोग्राफिकली। सो ग्रोथ, डिपार्टमेंट्स आर कन्फाइंड टू लोकल बिजनेस। ठीक है, बट ब्रांचेज कैटर द वाइडर मार्केट, ब्रांचेज कहाँ पर बाहर भी होती है। ठीक है, सो ये ब्रॉडर लेवल पे काम करता है, लेकिन डिपार्टमेंट है जो एक छोटी सी जगह पे काम करता है। ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स आर कन्फाइंड टू ए सिंगल प्लेस अनलेस सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओपन एल्सवेयर। ठीक है, सो ये एक ही जगह पे काम कर रही है, लेकिन जो ब्रांचेज है दे कैन बी स्टार्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट, दे कैन बी started anywhere in the world. Next is allocation of expenses. Now how the expenses are allocated among different departments, right? Point number one is, जैसे कि एक्सपेंसेस है आपके पास रेंट, रेट्स, टैक्सेस, पेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ये फ्लोर एरिया के हिसाब से कितना किस डिपार्टमेंट ने फ्लोर एरिया लिया हुआ है, नहीं तो इफ़ गिवन नहीं दिया है तो उसको टाइम बेसिस पे डालेंगे हम। अगर गिवन है तो फ्लोर एरिया अगर गिवन है सबका तो उसके बेसिस पे डालेंगे, नहीं तो टाइम बेसिस पे डालेंगे। दूसरा लाइटिंग एंड हीटिंग, ठीक है, इसको कंजप्ट कितनी एनर्जी यूज़ हुई है उसके बेसिस पे एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट इज सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे कि डिस्काउंट हो गया, बैड डेट्स हो गए, सेलिंग कमीशन, फ्रेट आउटवर्ड, ट्रैवलिंग, सेल्स मैनेजर सैलरी एंड अदर कॉस्ट, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, सो सेलिंग एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट है जो वो किसके बेसिस पे आपको एलोकेट करनी है, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट कितनी सेल हुई है। कैरेज इनवर्ड या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, वो किसके बेस पे करना है आपने, परचेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ठीक, कैरेज इनवर्ड या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड। वेजेस सैलरी टाइम बेसिस पे, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, अदरवाइज ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ ईच एसेट दी हुई है, अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, टाइम बेसिस और इक्वली अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जैसे जैसे केस आते जाएंगे हमारे पास क्वेश्चंस में, वो उसी तरीके से हमने क्या करना है, उसको एलोकेट करना है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, पीएफ या फिर ईएसआई, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, उसको किस बेसिस पे करना, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट कितनी कितनी, उसके बेसिस पे उसको हम एलोकेट करेंगे। ठीक है, सो ये क्या थे आपके पास, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी बुक का, ठीक है, उसको देखेंगे आगे कैसे करना है। ओके, सो स्टॉक दिया हुआ हमारे पास, दो डिपार्टमेंट है हमारे पास, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। ठीक है, परचेजेस दिए हुए हैं, रिटर्न इनवर्ड, रेंट, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस। ठीक, इस दूसरी साइड सेल्स दी है, ये आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके पास स्टॉक दिया है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी का ये क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास। ठीक है, मेक आउट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018-19, जो भी आपकी बुक में डेट लिखी होगी, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन assuming that the departments occupy similar floor area। ठीक है, ये सिमिलर फ्लोर एरिया लिखा हुआ ना इसने यहाँ पर, इसका एक मीनिंग है कि हमने जो कुछ एक्सपेंसेस है वो फ्लोर के एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जब हम आगे देखेंगे उसके बाद देखते हैं इसको कैसे करना है। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड among the two department in the ratio of 2:1। बाकी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो किस रेशियो में हमने लेना है, 2:1 में। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे क्या, डिपार्टमेंटल अकाउंट। राइट, ट्रांजैक्शन नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं पहले हम, लिखो 2,
टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। नाउ सी दिस इज योर डिपार्टमेंट ए एंड दिस इज डिपार्टमेंट बी, ये लिखना है यहाँ पर पहले। डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, ठीक है। तो कितना अमाउंट दिया आपको? 7,000 एंड 5,000। नेक्स्ट आपके परचेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी के टू 10,000 एंड 8,000। 10,000 एंड 8,000। नेक्स्ट, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप, ठीक है। जैसे परचेज करके कोई रॉ मटेरियल आया, उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हुए वही हो आपके क्या होते हैं? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना? ये आपके पास 400 एंड 200 ये सेग्रीगेट करके दिया है? नहीं, कैरेज इनवर्ड इज 400 एंड 600। जस्ट वेट, सिक्स हंड्रेड दिया हो आपके पास क्या? कैरेज इनवर्ड, तो उसको डिवाइड करेंगे 2:1 रेशियो में, ठीक है। तो 600 इंटू 2:1 कितना बनेगा? 2/3 एंड 1/3। ये समझ में आई बात? ये हो गया 400 आपके पास। और दूसरा वो रह गया 200। नेक्स्ट आपके पास वेजेस, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी अलग करके दिए इसने 2। सो ये कितनी है? ये है हमारे पास 2000 एंड 1200। 2000 एंड 1200। नेक्स्ट बाई सेल्स, ठीक है। तो सेल्स कितनी है आपके पास? 26,000 और 26,000 एंड 13,000 लेस रिटर्न, ठीक है। वो रिटर्न दिया हुआ आपके पास, वो है 400 एंड 600। इसको माइनस करेंगे, ठीक है।
तो ये आएगा कितना 25,600 और ये आएगा 12,400। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना, ये है आपका 3000 एंड ये बाहर दिया हुआ है 3000 6000, ठीक है। ट्वेंटी 28,600 और ये हो गया 18,400 टोटल। ट्वेंटी 28,600, 18,400, so to ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, उसको माइनस करेंगे ऊपर से, ठीक है। 12,000, 19,400, तो 28,600 में से 19,400 माइनस करेंगे, 9,200, तो कितना आ गया 9,200 ये आ गया, और 13, 14 ये आ गया। जीरो 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 4,000 ही, तो ये आ गया आपके पास 4,000, ठीक है। इतना ठीक है, किसने पूछना कुछ? सो नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे इसी के नीचे, टू बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। 9,200 एक, और दूसरा 4,000। अब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपके पास, रेंट, रेट, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज, ठीक है। रेंट, रेट, टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस एंड सैलरीज, ठीक है। अभी इसको आपने डिवाइड करना है क्योंकि ये डिवाइड करके नहीं दिया हुआ आपको। सो मेक आउट द डिपार्टमेंटल, ठीक है। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड अमंग द टू डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। 2:1 में डालेंगे इनको हम, टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। इसको 3:1 रेशियो में डिवाइड करो जरा, कितना आता है 1,500 को, ये आ गया 1,500 आपके पास। सो एक आएगा 2/3, 1,000, so in the ratio of 2:1, यहाँ लिखो ये कितना है 1,500, 1,500। नेक्स्ट
जनरल एक्सपेंसेस, अच्छा 12 टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भी 2:1 रेशियो में डालो, 800 है, ठीक है, 800 नहीं 1200 है, ठीक है। सो एक आएगा 800 आपके पास, दूसरा 400। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सैलरीज। सो सैलरीज कितनी है 15, तो इनको भी वैसे ही करना आपने, टू सैलरीज, ये भी 2:1 रेशियो में ही जाएंगी। सो ये एक ये आ जाएगा 1000 और ये 500। नेक्स्ट खत्म, टोटल करो। टोटल गिवन है आपके पास ये 9200 इस साइड और 4000 यहाँ पर, ठीक है, ये भी 92 और ये 4000 टू नेट प्रॉफिट। सो कितना ये 2028 6000 पक्का यार, 26 और 26, ठीक है। सो कितना आ गया नेट प्रॉफिट 6400 एंड 2600, राइट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए कंसर्न हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स इज एज फॉलोज। ये कुछ आपके पास डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, 3 डिपार्टमेंट ए बी और सी, ठीक है, इनका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हमने, ठीक है। तो ए डिपार्टमेंट टेलीविजन से रिलेटेड है, बी रेडियो, सी स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है, एक तो शॉप में और दूसरा वर्कशॉप में, ठीक है, एक शॉप में है और दूसरा वर्कशॉप में। सो और शॉप में कौन कौन से हैं, ए और बी शॉप में आते हैं, और वर्कशॉप में क्या आता है, सिर्फ वर्कशॉप वाला, ठीक है, सी। सो इट वाज, यहाँ पर दे आर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स फॉर द डिपार्टमेंट ए बी एंड सी टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टीवी एंड रेडियो आर सोल्ड इन द शॉप and servicing is done in the workshop. Salary wages comprise the following: shop 3/4, workshop 1/4. It was decided to allocate salaries and wages in the ratio of 1:2 between A and B, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हमने देखनी है। वर्कशॉप रेंट इज 500 पर मंथ, रेंट ऑफ द शॉप इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको देख लेते हैं हमने करना कैसे, राइट। तो ये है आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। तो सबसे पहले हम, ये है डिपार्टमेंट आपका ए, ये बी और ये सी। वैसे यहाँ पर भी है ए बी एंड सी, राइट। ये 3 डिपार्टमेंट है आपके पास। तो अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास जो गिवन है वो परचेजेस टू परचेजेस, ठीक है। अमाउंट आपके पास गिवन है 1,40,000, उसके बाद 90,600, ठीक है, उसके बाद 64,400, राइट। नेक्स्ट आपके पास सेल्स दी है, वो भी लिख देते हैं बाई सेल्स अकाउंट, या सेल्स लिख लो सीधा, ठीक है। वो कितनी है 150, 1,50,000,
फिर दीजिए 1 लाख, उसके बाद दिया आपके पास 25,000। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास गिवन है क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं भाई, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वो कितना गिवन है आपके पास 60,100 टेलीविजन का, रेडियोज का है बी डिपार्टमेंट का 20,300 एंड 44,600, 44,600 ये इसका दिया हुआ है। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी सारा किसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर आएगी आपको। तो पहले टोटल कर लेते हैं। तो टोटल आ गया इसका 2,10,100, 2,10,100 और इसका कितना है 1,20,300। नेक्स्ट आपके पास 69,600। राइट, ये टोटल आ गया आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पर भी लिख लेते हैं 22,10,100, 1,20,300 and then 69,600। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना कितना आ जाएगा 69,400 एक, 29,700 दूसरा एंड 5,200। ठीक है, माइनस कर अभी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ले आते हैं भाई, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन भी इसको क्या आ जाएगा 69,400 एक, 29,700 दूसरा एंड 5,200 राइट। नेक्स्ट उसके बाद सैलरीज टू सैलरीज। ठीक है, अब सैलरीज को कैसे डिवाइड करना है वो देख लेते हैं, सैलरीज को हमने कैसे डिवाइड करना। ठीक है, देखो सैलरी कितने दी है टोटल आपके पास, सैलरीज एंड वेजेस दिए हुए हैं आपके पास 48,000। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट है आपका, वर्किंग नोट। सैलरीज एंड वेजेस कितनी कितनी है गिवन है आपका 48,000। ठीक है, अब बोल क्या रही है कि सैलरी एंड वेजेस कंप्राइज द फॉलोइंग शॉप 3-4। ठीक है, शॉप में कितनी डालनी है हमने 3/4 और वर्कशॉप में कितनी जाएगी 1/4। ठीक है, लेकिन शॉप को फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में, शॉप को ए और बी में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे करना है। ये आपकी वर्कशॉप। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है। ठीक है, 48 को डिवाइड करना है पहले, तो कैसे करेंगे 48,000 इंटू
शॉप पे कितनी आएगी 3/4 और यहाँ पर कितनी आएगी 1/4। ठीक है, जाएगा ऊपर कितना आएगा यहाँ पर 3/4 करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 336,000। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 12,000। ये डिपार्टमेंट सी है आपका। ठीक है, ये वाला सी है। और इस 36,000 को फिर से डिवाइड करना है। कैसे इसने बोला हुआ है, it was decided to allocate shop salaries and wages in the ratio of 1:2 between A and B। अब 36 को किस रेशियो में डालना हमने 1:2 रेशियो में। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। तो 36,000 into 1/3 and 36,000 into 2/3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 12,000 और ये आ जाएगा आपके पास 24,000। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, ए डिपार्टमेंट में कितना जाएगा वेजेस एंड सैलरीज का इतना, बी में इतना, ये ए का है, ये बी का है और ये सी। ठीक है, लिखते हैं इसको, तो सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, तो कितना कितना निकाला हमने 12,000, 24,000 एंड 12,000। राइट, नेक्स्ट क्या है, रेंट टू रेंट। तो रेंट कितना है आपके पास, रेंट की एक एडजस्टमेंट दी है नीचे, वर्कशॉप रेंट इज 500 पर मंथ, रेंट ऑफ द शॉप इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देखो कैसे करना है इसको, रेंट की हम एडजस्टमेंट करेंगे सेकंड नंबर पे रेंट। ठीक है, तो टोटल रेंट वो कितना है आपके पास, टोटल रेंट बनेगा आपके पास 500 है ना, बोल रहा है यहाँ पर ये कि वर्कशॉप का रेंट कितना है, वर्कशॉप का रेंट कितना है, वर्कशॉप में क्या आता है सी। ठीक है, 500 into 12 इक्वल टू 6,000। ठीक है, लेकिन टोटल रेंट कितना है आपके पास, टोटल रेंट कितना गिवन कितना आपके पास 10,800 ऊपर, ऊपर जो आपको सैलरी एंड वेजेस के नीचे दिया हुआ ना 10,800। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा आपके पास 6,000 तो चलेंगे सी डिपार्टमेंट में, बाकी कितना बचा आपके पास -6,000 करेंगे तो बच जाएगा 4,800। ठीक है, ये 4,800 हमने किसके बीच में डिवाइड करना है, डिपार्टमेंट ए के बीच में और डिपार्टमेंट बी के बीच में। ठीक है, लेकिन किस रेशियो में बोला इसने, इक्वली। ठीक है, इक्वली डिवाइड करेंगे इसको, तो 4,800 इंटू 1:1 रेशियो होगा ना, तो 1/2, 4,800 इंटू 1/2 मीन्स 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, कितना आ जाएगा 2,400 और ये भी कितना आ जाएगा 2,400। ठीक है, ये ए का आ गया और ये बी का और ये सी का हमने पहले ही निकाला। ठीक है, तो लिख दो इसको 2,400 यहाँ पर, 2,400 यहाँ पर और 6,000 यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट इज sundry expenses are to be distributed on the basis of turnover of each department। ठीक है, so to sundry expenses। ठीक है, इसका भी वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है, वर्किंग नोट बनेगा, किस रेशियो में डिवाइड करना है इसने, इसने बोला टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो सेल कितनी कितनी गिवन है, आप सेल आपके पास गिवन है, देखो सेल्स कितनी कितनी गिवन है आपके पास, ए बी और सी। ए की कितनी है 1,50,000, बी की कितनी है 1 लाख,
और सी कितनी है 25,000। ठीक है, इस रेशियो में हमने इसको डालना है। ठीक है, तो हम इस रेशियो में इसको निकालेंगे, कितना बनेगा ये 1:4:6 जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो। ठीक है, तो रेशियो क्या बनेगी 6:4:1। तो तो कैसे डालना हमने अब इस रेशियो में 6:4:1, राइट। कितने हैं टोटल सन्डे एक्सपेंसेस, ये है हम आपके पास 11,000। ठीक है, तो 11,000 को हमने किस रेशियो में डालना 6:4:1 रेशियो में। ठीक है, यहाँ पर करते हैं तो 11,000। ठीक है, ये A का है, B का और ये C। कैसे निकालेंगे 11,000 इंटू 6/6 4 10 तो 11 हो गया ना। ठीक है, तो ये 6,000 आ जाएगा इस पर। फिर सिमिलरली ये करना हमने 4/11 तो 4,000 आ जाएगा। तो लास्ट में 11,000 इंटू 1/11 इज इक्वल टू आ जाएगा 1,000। ठीक है, 6,000 4,000 एंड 1,000। तो 6,000 4,000 एंड 1,000, राइट। तो ये बन गया आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और कोई चीज जो गिवन है आपके पास, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब हम करेंगे टोटल। अब हम करेंगे टोटल इसका, देखते हैं कि प्रॉफिट आता है या लॉस है। ठीक है, तो टोटल कितना हमारे पास, देखो यहाँ पर टोटल आ रहा है 69,400। 69,400। ठीक है, इसका टोटल कितना आ रहा है 29,700। नहीं 29,700, 29,700, 24,000 ये इस साइड यहाँ पर टोटल ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो 28 29 29,400, राइट। हाँ, ये यहाँ पर टोटल ज्यादा आ रहा है 30,400। ठीक है, तो यहाँ पर 69,400। ठीक है, और इस साइड का टोटल भी ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट का साइड का कम आ रहा है। 7 18 19, ये आ गया 19,000 आपको। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एक ही केस में आएगा, वो है डिपार्टमेंट ए के लिए। तो नेक्स्ट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट आएगा, तो काटेंगे 49,000। इनमें प्रॉफिट नहीं आएगा, इनमें लॉस आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई लॉस। कितना आएगा, इसमें तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लॉस आपका, क्योंकि इसका टोटल डेबिट साइड पर ज्यादा है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आएगा, ये आएगा 700 आपके पास, और यहाँ पर कितना आएगा 13,800। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। Right. So question number 6, from the following particulars,
given by Mason Tins and Toys prepare a departmental trading and profit and loss account for the year. Profit and trading and profit and loss account for their two departments, tin department and toy. दो डिपार्टमेंट में tin डिपार्टमेंट और टॉय डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इन्हीं को हमने क्या करना है, इन्हीं का क्या बनाना हमने, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, टिन का भी दिया है और टॉयज का भी दिया है, रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है, टिन ने कितना कंज्यूम किया है, स्टोर कंज्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है, वेजेस दी है, एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग एक्सपेंसेस, राइट, देन ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री इक्विपमेंट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अलग अलग करके दिया हुआ है। और नीचे क्या बोला इसने, यू आर ऑल्सो गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, टॉयज आर मेड ऑफ एंड बिट्स ऑफ शीट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय टिन, ठीक है। तो टॉय किससे बनते हैं, जो शीट यूज करता है कौन एज ए रॉ मटेरियल, टिन, ठीक है, वहां से वो टॉय बनाए जाते हैं। सो द वैल्यू ऑफ सच मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय टॉय डिपार्टमेंट वाज 2000, ठीक है। सो कितनी वैल्यू यूज की है, 2000। इसका मतलब जो स्टोर कंज्यूम्ड है आपका, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, सो उसमें 36,000 में 2000 किसका है, टॉय डिपार्टमेंट का, राइट। सो टॉय मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट, ओके, ओनली 1/8 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय टॉयज डिपार्टमेंट, 1/8 जो टोटल एरिया है बिल्डिंग का वो किसने ऑक्युपाई किया हुआ है, टॉय डिपार्टमेंट, राइट। सो let us do this question, right? So this is your trading and profit and loss account, ठीक है, डिपार्टमेंट्स का। तो देखते हैं इसको, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंटल, लिख दो यहाँ पर, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड profit and loss account for the year ended 31st March 2021, ठीक है, गुड। नाउ सबसे पहले बुकिंग स्टॉक, ठीक है, ये आपका बच्चों डिपार्टमेंट में ये टीम्स है और ये टॉय, वैसे ये टीम है एंड दिस इज राइट। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर को बोलेंगे, okay, so to opening stock, ठीक है, तो ये गिवन है आपको ओपनिंग स्टॉक कितना, 15,000 and 5,000, ठीक है, 15,000 and 5,000, राइट। उसके बाद रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल, तो ये कितना है, टोटल 36 है ना, तो 2000 टॉय में क्या आएगा, एडजस्टमेंट में दिया हुआ नीचे, और 36 में से 2 निकालेंगे तो 34 बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में आपको, टू स्टोर्स, स्टोर मींस और रॉ मटेरियल, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, स्टोर की, स्टोर कंज्यूम कितना किया, 9,000, ठीक है। सो इस 9,000 को किस रेशियो में हमने डिवाइड करना है, जो रॉ मटेरियल का रेशियो, रॉ मटेरियल का रेशियो क्या है, 34,000 is to 2,000, ये बनता है 34 is to 2,
ठीक है, इस रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे, राइट, इस रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा ये है ना आपका 9000 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8500। वैसे ही दूसरा 9000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 8500 और यहाँ पर 500, ठीक है। नेक्स्ट वेजेस, तो वेजेस, तो वेजेस कितनी है आपके पास, ये तो वैसे ही गिवन है आपके पास 3000 और 6000, टीम में 6000 और टॉय में 3000। नेक्स्ट सेल्स ली है कितनी है आपके पास बाई सेल्स, ठीक है, तो गिवन है सीधे सीधे आपको 90,000 एंड 18,000, ठीक है, टीम में 90,000 और 18,000। सर नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना क्लोजिंग स्टॉक है, टीम का है 12,000, टॉयज का है 6,000, ठीक है। तो ये बन गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और कोई चीज नहीं इसमें आएगी, पैकिंग एक्सपेंस यहाँ नहीं आएगी, एडवर्टाइजमेंट यहाँ नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन के बाद सारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो सो अब हम करेंगे टोटल, ठीक है। इसका टोटल कितना आएगा, जो टोटल आएगा वो आएगा, यहां से करेंगे हम 1,02,000 यहाँ पर आ जाएगा, 1,02,000, ठीक है, तो इसका कितना आएगा 24,000। सिमिलरली यहाँ पर भी लिखेंगे 2,000, 1,02,000 एंड 24,000, राइट। ऊपर से करेंगे आप, यहाँ पर लिख जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा माइनस करके 1,02,000 में से ये सारी चीजें माइनस करेंगे, 15,000, 34,000, 85, 6,000, तो ये आ जाएगा आपको माइनस करके 38,500, और दूसरी साइड कितना आएगा 13,500, 13,500, राइट। तो ये बन गया आपका क्या ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे जाएंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, डॉट, तो कितना आएगा ये, वही जो लिखा हमने 58,500 एंड 13,500, राइट। नेक्स्ट अब हमने एडवर्टाइजमेंट डालनी है, तो एडवर्टाइजमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है, सेल्स रेशियो में। सेल्स की रेशियो क्या है 90:15, सेल कितनी दी है, सेल दी आपके पास, सेल दी आपके पास 90,000 एक इसकी की, और दूसरी कितनी दी है 18,000, तो रेशियो क्या बनेगा 90:18, ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। इस रेशियो में हमने इसको डिवाइड करना है, तो किस रेशियो में डिवाइड करना है 90:18, एडवर्टाइजमेंट को सेल्स रेशियो में ही डिवाइड करना है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। सो ये सेल्स एडवर्टाइजमेंट है कितनी आपकी, एडवर्टाइजमेंट है आपकी 1500, ठीक है, तो 1500 को जब 90:18 में डिवाइड करेंगे तो कितना है
ये आएगा 1250 और दूसरा आएगा 250। डिवाइड कैसे करते हैं एकदम मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए दिखाया जाता है। जैसे ये है ना 1500 इंटू 90 डिवाइडेड बाई कितना हुआ, 890 प्लस 18 180 डिवाइड होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1250। वैसे ही दूसरा भी 18 डिवाइडेड बाई 108 इक्वल 250, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका पैकिंग एक्सपेंसेस टू पैकिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सो पैकिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, पैकिंग एक्सपेंसेस है आपके पास क्वेश्चन में बोला गया वो देख लेते हैं जरा। पैकिंग एक्सपेंस टॉयज के लिए वैसे जैसे जाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना आपने, यहाँ ब्लैंक छोड़ दो, यहाँ लिखो 600, ठीक है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। सो ऑफिस एक्सपेंसेस कितने दिए हैं आपके पास, ये दिए हैं 4800। 4800, ठीक है। 4800 को किस रेशियो में डिवाइड करना है, 90:18, 90:18। 4800 को किस रेशियो में डिवाइड करना है, 90:18 में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये तो आ जाएगा 4000 आपका टीम्स का, और टॉयज का कितना आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 103 इक्वल टू 800, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 4800। नेक्स्ट टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। दो चीजों पे डेप्रिसिएशन लगेगा, एक फैक्ट्री पे और बिल्डिंग पे। तो पहले लिखो फैक्ट्री, फिर लिखो बिल्डिंग, ठीक है। सो फैक्ट्री पे कितना है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, okay. The toys are made and bits of sheets of raw material used by the department. The value of such material during the department was this, okay. Toy making does not require any equipment, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो फैक्ट्री सारी की सारी किसके पास है, टीम के पास है, ठीक है। फैक्ट्री जो वैल्यू है फैक्ट्री की, वो सारा का सारा किसके पास है, टीम के पास है। यहाँ पर आ जाएगा ये, और यहाँ पर बिल आएगा। बिल्डिंग जो है उसको डिवाइड करेंगे, देखो लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है ओनली 1/8 ऑफ द टोटल एरिया बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय टॉय डिपार्टमेंट, ठीक है। सो इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है हमने, 7:1, 7:1 रेशियो में, ठीक है। मीन 7 पार्ट किसका ऑक्युपाई किया हुआ टीम ने, और टॉय ने कितना दिया है 1/8 पार्ट ऑक्युपाई किया हुआ, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी है इसकी 1600, ठीक है। तो इस 1600 को हमने डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे 1600 को, वो कितना आएगा, एक साइड आएगा आपका 1400 और दूसरी साइड कितना आएगा 200। कैसे किया हमने वो देख लो, 1600 into 7 divided by 8, ठीक है। तो ये 14 आ गया इन वाला, और टॉयज में कितना आ जाएगा 1/8, ठीक है। तो 200, राइट। अब हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब निकालेंगे प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट।
ठीक है, पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल तो आएगा वही 38,500 और ये 13,500, ये भी 38,500 और ये 13,500। ठीक है, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 28,650 और ये कितना आएगा 11,650। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपका नेट प्रॉफिट। Okay, thank you.